get ready for Omkaram. This call is now being recorded. Sairam, everyone. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Now Sairam listen, ma'am. Sairam, beta. Listen to ma'am. Mute yourself, everyone. कल के टेस्ट में सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है. एक बार आपके लिए क्लैपिंग. वेरी गुड. Great job. Everyone has done. Very good. All the best. Okay. Happy? You all are happy? Yes? Good. Ma'am. Okay. Yes. Good. Today we will continue the same lesson. Gaurav, Gaurav, unmute yourself. Gaurav, कल का टेस्ट आपने दिया था बेटा? क्यों बेटा, क्यों नहीं दिया? गौरव, बोलो बेटा. कल आप नहीं थे ना क्लास में? Yes ma'am. आपने टेस्ट नहीं दिया ना कल का? क्यों नहीं थे बेटा क्लास में? क्यों नहीं थे? मैम मैं कल बाहर गया था. इंदौर गए थे यार, लेकिन आपने टेस्ट मिस कर दिया है ना? मिस कर दिया. Yes ma'am. ओके, ठीक है बेटा. Now mute yourself, everyone. Everyone mute yourself. I have something for you. Okay, I would like to show you that. Do you want to see? Yes. Do you want to see? Yes. Yes. Yes, Good, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. You know what is this? Yesterday I have taught you. इसका नाम कौन बता सकता है? कल ही हमने लिखा. Spatula. Very good. Very good, Aradhya. Spatula. What is this? Yesterday we have learned this one also. Spoon. इसका एक नाम बता. Ladle. Ma'am. Yes, Alina. Very good. Ladle. This is ladle. Okay. Good, Alina. Good. Now tell me what is this? Channi ma'am. Channi. I have one word. Oh, steamer. Yes, very good. Steamer. Very good. Steamer. Yes, very good. Okay. Now I will show you something else also. Now can you see this patila? आपके घर में भी होगा. हाँ. Patila. Yes. Patila. ये भी आप. Ma'am lota. Lota. Ma'am pot. Lota. Deepak. Ma'am pot. Ma'am pot. Ma'am This is not pot. Yeah, दीपक. Deepak. दीपिका आपको दिख रहा है अच्छे से? Ma'am diya. Yes, ma'am. Yes ma'am diya. दिया. Diya. Now listen to ma'am. Now mute yourself, everyone. Now tell me all these. What are these? Tell me what are these? Anyone? What are these? Utensils. Yes, these are all utensils. Okay. Have you observed them carefully? Yes. Have you observed them carefully? Yes ma'am. Yes. Yes. Now next question. Listen to my question carefully. Mute yourself, Chinmay, and listen to my question carefully. Then any one of you can answer.
Okay, all these utensils are made of same material or different material. Any one of you? Same material. I have shown you few utensils. देखो मैंने अभी आपको कुछ utensils दिखाए सारे. Are they made of same material or different material? Once again, Anish. Yes, San. Yes, they are made of material. Okay, different material. Okay. Any one of you, can you tell me which is this metal? इस मेटल का इस मटेरियल का क्या नेम है? Any one of ladle. yes. Okay, okay. अब 1 मिनट के लिए सब लोग जरा म्यूट करो सारे लोग. मेरा क्वेश्चन का आंसर समझो पहले. गौरव म्यूट करो. ये जो मैं स्कीमर शिवांश बेटा म्यूट करो. शिवांश म्यूट करो. डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा. शिवांश सक्सेना प्लीज म्यूट योरसेल्फ. शिवांश एंड अमान. शिवांश को मेरी आवाज नहीं जा रही. शिवांश म्यूट करो बेटा. ओके, मैंने पूछा कि ये जो स्कीमर है इसका मटेरियल क्या है? Steel. मटेरियल किस Metal. Yes, correct. It is made of steel. It is made of. इस मेटल का नाम क्या है? स्टील. अंडरस्टूड एवरीवन? Now, this spatula is made of which material? Steel. No. Wood. Plastic. म्यूट योरसेल्फ. आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैम. जब मैम आंसर बताती तो आप म्यूट करेंगे. ये प्लास्टिक का नहीं. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये वुडन है. वुड का बना हुआ है. आपके घर में भी होगा. स्पेशली डोसा वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना? दिस इज मेड ऑफ. लकड़ी होता है. हाँ बेटा लकड़ी होता है. ओके, नाउ टेल मी नेम ऑफ दिस मटेरियल. नेम ऑफ दिस मेटल. कोई इंग्लिश में जानता है इसका नाम? कॉपर. यस करेक्ट. कॉपर. तांबा भी बोलते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉपर. इसका कलर देखना थोड़ा अलग है. अभी मैंने आपको जो स्टील और वुडन दिखाया इससे थोड़ा डिफरेंट है. आप आराम से पहचान सकते हो. दिस इज कॉपर. लोटा इज मेड ऑफ कॉपर. इस मेटल का नाम है कॉपर. ये आपके घर में भी होगी. इस मटेरियल से बनी हुई चीजें आपके घर में भी होंगी. आप ढूंढ सकते हो आज. ठीक है? यस. नाउ एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट इज मेड ऑफ? करेक्ट. पीतल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है? और पीतल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रास. पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रास. ऑफ यू ब्रास. लाउडली म्यूट रखो अपने आप को. जोर से बोलो. ब्रास. यस करेक्ट. पीतल. ओके ब्रास. म्यूट एंड टेल मी नेम ऑफ दिस मेटल. एल्यूमिनियम. मैम एल्यूमिनियम. किसी को कोई बता रहा है आंसर?
अरे मम्मी आंसर करेक्ट. Okay, now tell me this glass is made of which material? This tumbler is made of which material? Glass, ma'am, glass. Well done. कांच यानी glass. Now mute yourself. तो हमारे घर में वेरी गुड जीविका. हम अभी दे प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ. अब मेरी बात ध्यान से सुनना है तो हमारा लेसन आगे बढ़ेगा बेटा, ठीक है. तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारी यूटेंसिल्स है जो अलग अलग मटेरियल से अलग अलग मेटल से बने होते हैं, है ना. अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग मेटल से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं. हम कुकिंग के लिए स्टील या एल्यूमिनियम या पीतल से बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते हैं. सर्विंग के लिए स्टील, वुडन, प्लास्टिक, क्ले या ग्लास से बने हुए मटेरियल सर्विंग के लिए यानी खाना परसने के लिए, है ना. और कुकिंग के लिए एल्यूमिनियम, स्टील. पहले के जमाने में कल हमने वीडियो में देखा कि अर्दन पॉट्स में खाना बनाया जाता था, यानी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था. कल हमने वीडियो में देखी थी ना ये बात, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, these are all material of which utensils are made of. These are all material of which utensils are made of. Understood everyone? Now tell me, any one of you, I will ask Kushagra, unmute yourself. Yes, ma'am. सिर्फ कुशाग्र अनम्यूट करेगा, बाकी करेंगे, ठीक है ना. ध्यान से सुनना, सारे लोग मत कर लेना. कुशाग्र, मम्मा राइस बनाती हैं? Yes, ma'am. हाँ, किस चीज में बनाती है? Pressure cooker. प्रेशर कुकर में. क्या आपने कभी देखा कैसे बनाती है मम्मा? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये दूसरा कौन अनम्यूट किया कुशाग्र के अलावा? अनिरुद्ध को हर बार अनम्यूट करना ही है. नहीं बोला तब भी अनम्यूट करना है अनिरुद्ध को. हाँ, वेरी गुड. हाँ, कैसे बनाती है कुशाग्र? कैन यू एक्सप्लेन? मैम आप एक्सप्लेन. मैम पहले राइस को लेती हैं और फिर वाटर में डालती हैं, इन्हें धोती हैं और फिर प्रेशर कुकर में राइस डालते तो उसके साथ में वाटर भी होता है, ये सूखा राइस होता है बेटा. वाटर के साथ उसको प्रेशर कुकर में चढ़ाती है बेटा. आपने कभी देखा है? याद करो थोड़ा सा. यस, साथ में वाटर होता है. यस मैम. यस, ऑयल होता है क्या? और ऑयल डालती है क्या मम्मी उसमें? ऑयल की जरूरत पड़ती है क्या राइस बनाने के लिए? याद करो थोड़ा सा, मम्मा ऑयल डालती है क्या? ऑयल की जरूरत पड़ती है क्या? मैम 1 स्पून डालती है. अच्छा, 1 स्पून डालती है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, आराध्या भार्गव, अनम्यूट योरसेल्फ. वेरी गुड कुशाग्र. हाँ, मम्मा पूरी कैसे बनाती, पूरी कैसे फ्राई करती है? क्या आप बता सकते हो आराध्या? खुद से बताइए. मैम तेल में गरम तेल में हम पुड़िया बेल के डालते हैं. तो कढ़ाई जो रहती है वो तेल से भरी हुई रहती है ना? पानी से भरी हुई, तेल से भरी रहती है कढ़ाई आपकी जो पूड़ी बनाती है मम्मा, तो तेल से भरी रहती है क्या? यस. तो उस तेल में बहुत सारे तेल उसको खूब अच्छे से डीप किया जाता है. क्या उसमें पानी डाल हम उसको करते हैं? तो पूरी को जो तेल में फ्राई करते हैं, आराध्या मेरी तरफ देखो और सोचो. जब हम पूरी को तेल में डालते हैं, साथ में हम तेल में पानी भी डालते हैं क्या फ्राई करते समय? शिवांश, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है शिवांश. नो या यस? नो मैम. नो. वेरी गुड. तो हम पूरी को बनाने का तरीका अलग है, राइस को बनाने का तरीका अलग है. क्या अभी आपने ऑब्जर्व किया किचन में जाकर कभी? राइस को हम प्रेशर कुकर में चढ़ाकर उबालते हैं पानी के साथ, ठीक है. और पूरी को हम क्या करते हैं? डीप फ्राई इन द ऑयल.
ऑयल लेते हैं, उसमें हम पूरी को डीप फ्राई करते हैं, उसमें हम पानी नहीं डालते। तो पूरी बनाने का मेथड इज डिफरेंट एंड राइस इज प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड। ओके, बोथ दी मेथड्स आर डिफरेंट। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों की मम्मी केक भी घर में बनाती है। किसकी मम्मी केक घर में बनाती है उसको थोड़ा बहुत पता होगा। मेरी मम्मी बनाती है घर में केक। मैम अच्छा, मेरी अभी मम्मी बनाती है। अभ्युदय उदय बोल रहा है वो ना आइसिंग का केक बनाती है। अच्छा अभ्युदय, लिसन टू मी केयरफुली बेटा। ओके, मम्मा केक को जब बना लेती है, पूरा उसका डो तैयार करती है, तो उस डो को क्या करती है बाद में केक बनने के लिए? फ्राइंग करती है तेल में कि प्रेशर कुकर में उसको स्टीमिंग करती है कि मम्मा उसको बेक करती है? कभी आपने ध्यान से देखा? बेक करती है। बेक करती है। जीविका, बेक करती है। देखो जिसकी चांस है उसी को आंसर करने तो बेटा। अभ्युदय, आप भी नहीं, अभी मैंने किससे पूछा था? अच्छा, यहाँ अभ्युदय से पूछा था। अभ्युदय आप बोलो बेटा, बेक करती है किस चीज में रखकर बेक करती है? कभी आपने ध्यान दिया था? आपके घर में माइक्रोवेव अवन है क्या है? मेरी मम्मा बेक करती है। माइक्रोवेव नहीं है। यस, माइक्रोवेव अवन में भी हो जाता है, इलेक्ट्रिक अवन में भी बेक हो जाता है। यस अभ्युदय, वेरी गुड। अच्छा, नाउ देवांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। देवांशी, मम्मा इडली बनाती है, तो आपने कभी ध्यान दिया था मम्मा इडली कैसे बनाती है? कौन सी चीज में रख के बनाती है? Okay, Mohitanshini, can you answer? Have you seen how Mama makes idli? Mohitanshini. मैम, मम्मा मैम मम्मा अभी मैंने आपको हाँ बोलो मोही, बोलो, आवाज आ रही मुझे। मैम पतीले में बनाती है। मैम आपने ध्यान से नहीं देखा। मैम मम्मा राइस की बनाती है और उसे पतीले में उसको बनाती पकाती कैसे है वो आपने देखा है? यस मैम। उसको कैसे पकाती है? हाँ पानी के हाँ अंदर हाँ, दाल डालते हैं और उसके बाद राइस को पीस के डालते हैं। उसके बाद उसे उसमें पानी डाल के उसे घोरते हैं। उसके बाद उसे इडली के बेस में डालते हैं। उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में रख देते हैं। हाँ, ये लास्ट वाला पार्ट ना वो इम्पोर्टेंट है ना? उसको प्रेशर कुकर में उसे के अंदर रखा जाता है। उसे प्रेशर कुकर से निकालते हैं तो इडली बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद उसके बाद तेल में उसे तलने के लिए डाल देते हैं। उसके बाद इडली बनके तैयार हो जाती है। तो हम नहीं तलते बेटा, इडली को कहाँ तलते हैं? चलो, आपने जो लास्ट बात बताया वो इंटरेस्टिंग है कि उसको इडली पॉट सेट किया जाता है, फिर इडली पॉट को प्रेशर कुकर में रखते हैं, नीचे पानी रहता है कुकर में, और उसकी स्टीम जो बनती है उस स्टीम के ऊपर ही वो पक जाती है ना? समझ में आ गई सबको ये वाली बात? तो इडली को बनाने का तरीका और पराठे को बनाने का तरीका क्या सेम है? आराध्या राठौर, अनम्यूट योरसेल्फ। पराठा जो मम्मा बनाती है और इडली भी बनाती है, दोनों एक ही तरीके से बनते हैं कि अलग अलग तरीके से? मैम अलग अलग। अलग अलग। पराठा कैसे बनता है आराध्या? मैम आटा आपके पास है, बस आपको इतना बताना है उसको मम्मा कुकिंग कैसे करती है। तवे के ऊपर, प्रेशर कुकर में, कैसे करती है? तवे के ऊपर हल्का हल्का तेल या घी छोड़ा जाता है, फिर उसको सेका जाता है, ठीक है? बहुत सारा तेल लेती है कि कम कम तेल में उसको पकाती है? कैसे करती है? कम कम तेल में उसको
उसको फ्राई किया जाता है, मतलब सेका जाता है उसको, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो डीप फ्राइंग नहीं है। एम आई राइट? कम तेल में उसको शैलो किया जाता है ना, ठीक है। जैसे कटलेट भी हमारे घर में बनते हैं, तो कटलेट भी मम्मा फ्राइंग पैन में जब रखती है तो उसमें हल्का हल्का तेल उसमें डालती है, या चीला बनता है या डोसा बनता है, कम तेल में उनको फ्राई किया जाता है। ज्यादा तेल की जरूरत, जैसे हम पूरी या पकोड़ा बनाते हैं तो उसमें हमको बहुत सारा तेल चाहिए, है ना। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग है। ये जो हमने अभी डिस्कस किए ना, ये सारे क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग। इडली, राइस, ये सब कैसे बनता है? नहीं, राइस जो बनता है बॉइलिंग से बनता है, हम उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, वो पानी बॉईल होता है ना। और फिर उसके साथ मैम में रोटी से भी बनती है। राइस भी कुक होता है, पानी बॉईल होता है, पानी के साथ साथ राइस भी बॉईल होता है और राइस बन जाता है, ठीक है। इडली है, खमन है, ये सब स्टीम के ऊपर पकाए जाते हैं। उसमें ज्यादा पानी नहीं होता है, नीचे थोड़ा सा पानी होता है, उसकी जो भाप बनती है उसके साथ साथ इडली और खमन यानी ढोकला जिसको आप बोलते हो, ये बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस है स्टीमिंग का। स्टीमिंग से हम खमन है, इडली है, ये चीजें बनाते हैं। फ्राइंग से हम पूरी, पकोड़े जो आप खाते हो उसमें बहुत सारा तेल लगता है, तो ये सारे डीप फ्राइंग के फूड आइटम्स है जिसमें बहुत सारा तेल चाहिए, तो उस तेल में उसको खूब देर तक फ्राई किया जाता है। अच्छा, जो रोस्टेड पापड़ होता है, तला हुआ नहीं, रोस्टेड पापड़, जिसको हम गैस पे या चूल्हे पे सेकते हैं बिना तेल से, है ना। भुट्टा आप खाते हो, भुट्टा मार्केट से भी आप लेकर आते हो, भुट्टा, है ना, रोस्टेड भुट्टा। तो उसमें भी क्या किया जाता है, सीधे सीधे के गरम आंच में उसको सेका जाता है, बिना तेल के, बिना तेल के, बिना पानी के, उसको सीधा गरम आंच पे सेका जाता है। कभी मम्मी को पापड़ सेकते हुए देखा आपने? सीधा मम्मी उसको चिमटे में पकड़ती है और सीधा गैस पे या चूल्हे पे उसको सेकती है, ना उसमें मम्मा तेल लगाती है, ना मम्मा उसमें पानी लगाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। आप भुट्टा भी लाते हो मार्केट से, घर में भी मम्मा भुट्टा सेकती है, तो उसमें भी मम्मी डायरेक्टली सीधा उसको गैस पे या चूल्हे पे, जिनके घर में सिगड़ी है, सिगड़ी पे उसको सेकती है, बिना तेल के, बिना इसके हम उसको बनाते हैं। तो ये मेथड जो है खाना बनाने का, उसको कहते हैं रोस्टिंग। उसको क्या कहते हैं? रोस्टिंग। तो जितने प्रकार के हमारे फूड आइटम्स है उनको बनाने के हमारे अलग अलग वेज भी है, अलग अलग तरीके हैं। खमन और इडली स्टीमिंग से बनता है, राइस बॉइलिंग से बनता है, ठीक है। रोस्टेड पापड़ है, भुट्टा है, ये सब रोस्टिंग से बनते हैं, ओके। जैसे आपका केक है, बिस्किट्स है, ये सारी चीजें बेकिंग से बनती है। बेकिंग भी एक मेथड है खाना बनाने का, ओके। और बॉईल फ्राइंग से, डीप फ्राइंग से पूरी है, पकोड़ा है, शैलो फ्राइंग से आप चीला बनाते हो, कटलेट बनाया जाता है। तो ये अलग अलग वेज है कुकिंग के। तो ये भी हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। सबको ये मेथड्स ऑफ कुकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? मेथड्स ऑफ कुकिंग। सबको ये समझ में आ गए क्या? मेथड्स ऑफ कुकिंग चैट बॉक्स में टाइप करो बेटा, क्लियर हो पाए क्या सबको? अगर आपको नहीं हो पाया है तो नो करके टाइप करो, और जिसको हो पाया वो यस करेगा। बहुत सारे बच्चों का यस आ रहा है। हाँ, अब जिसको समझ में नहीं आए मेथड्स ऑफ कुकिंग, वो नो टाइप करेगा। शिवांश सक्सेना, अनम्यूट योरसेल्फ शिवांश। शिवांश अनम्यूट करो बेटा। हाँ शिवांश, पूछो क्या समझ में नहीं आया बेटा। शिवांश आप अनम्यूट करो, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही शिवांश। उत्कर्ष आप भी अनम्यूट करो। उत्कर्ष और शिवान अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ उत्कर्ष, क्या समझ में नहीं आया बेटा, पूछो। बेटा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन को थोड़ा पास में ले लो। आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई वो पूछो, अच्छे से पूछो जरा, समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही।
मैम कुकिंग का जो गौरव आप प्रोसेस रहता है वो आप लिखवाएंगी क्या? मैंने अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि अभी मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग जो एक्सप्लेन किए, क्या वो आपको समझ में आए क्या उत्कर्ष? मैंने क्या क्या बताया? बॉइलिंग, रोस्टिंग, है ना, स्टीमिंग, बेकिंग। तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या उत्कर्ष? पहले वो डिस्कस करो, बाद में हम देखेंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये आपको समझ में आए क्या डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग? उत्कर्ष अभी आप आंसर करो, फिर मैं शिवांश से बात करूंगी। उत्कर्ष आंसर नहीं कर रहे हो, आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा, तभी तो आपकी आवाज मेरे पास आएगी। Utkarsh, please unmute yourself and answer my question. Have you understood ways of types of cooking, different types of cooking, different ways of cooking or not? आपको समझ में आया? हाँ उत्कर्ष बोलो। क्या बोलूं? चलो उत्कर्ष को कुछ बोलना नहीं है। शिवांश, now unmute yourself and tell me what you have not understood. आपको क्या समझ में नहीं आया वो पूछो बेटा। शिवांश, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। आपने अनम्यूट तो किया लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो शिवांश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है कि आपको कौन सा वाला मेथड समझ में नहीं आया। आप थोड़ा सा किचन में जब भी मम्मी खाना बनाए और आप थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कर, आपको ये बात समझ में आएगी कि कुकिंग के अलग अलग वेज है, एक ही तरीके से पूरा खाना नहीं बनता है। Okay, so Shivansh is typing something. We will discuss question answers. Let me share my screen. Ma'am, voice is not clear. जीविका, मेरा बेटा यहाँ पे फुल वॉल्यूम है, देखो मेरा वॉल्यूम फुल है बिल्कुल। आप मैम अपना सिस्टम जब चेक। आप बोल रहे हो ना तो ऐसी आवाज आ रही है, कटी कटी सी, कट कट की आवाज आ रही है थोड़ी सी। हाँ, अभी आप अनम्यूट करो। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपकी तरफ बेटा, मैं किसी और बच्चे से पूछूं थोड़ा सा, है ना। चिन्मय, मेरी आवाज क्लियर है कि कट हो रही है बेटा? चिन्मय, यस मैम। माय वॉइस इज क्लियर चिन्मय और नो? यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। इसका मतलब जीविका आपके नेटवर्क, जीविका आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इशू है बेटा। आप थोड़ा देख लो नेटवर्क कहाँ अच्छे से आ रहा है, उस कमरे में शिफ्ट कर लो आप। ठीक है जीविका? ओके, नाउ जीविका, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। नाउ डिस्कस नेक्स्ट। ओके, शिवांश की प्रॉब्लम मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। शिवांश, तुम टाइप कर चुके हो क्या? शिवांश का वॉइस भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शिवांश। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। गौरव, कैन यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन? गौरव, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? गौरव, ओके। अमान, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अमान। मैंने क्वेश्चन लिखना है। नहीं, अभी आपको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। अमान, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अमान, यस मैम। अमान की भी आवाज नहीं आ मैम रही। हाँ अमान, रीड द क्वेश्चन। रीड बेटा, अभी आपको लिखने के लिए हमने राइट द नेम। अमान एक मिनट। मैम यूटेंसिल्स। बेटा अभी उसको अमान को पढ़ने दो। एनी 5 यूटेंसिल्स। बेटा ये क्या लिखा है अमान? यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स। अमान बोलो लाउड। यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स।
Very good. Utensils. Here you have to write down names of any 5 utensils. कोई भी 5 utensils के नाम लिखने हैं. अभी आपको लिखना नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है. ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. प्लेट, ग्लास, बोल, है ना, कढ़ाई, तवा, पैचुला, लैडल, स्कीमर, कुछ हमने कल लिखे थे. यस, यू कैन राइट एनीथिंग, whatever you want. Understood everyone? Or shall I write? I will write, okay? मैम मैं आपको लिख के बता रही हूँ अभी. आप अभी ध्यान से इसको पढ़ेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी. ओके? What I have written? Plate. प्लेट में आप खाना खाते हो ना. बोल. ओके, तवा हमने कल लिखा था. ग्लास और टम्बलर. टम्बलर और ग्लास दोनों चीजें एक ही है. स्पून. फोक. ठीक है, 5 हो गए. आप इसके अलावा भी लिख सकते हो. ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है. ठीक है, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, जैसे कि कढ़ाई, तवा, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, ओके, लैडल, स्पैचुला, whatever you want to write, you can write here. Okay, we will go to the next question. What are, okay, who will read? I will ask somebody else. Yagya, can you? No, Yagya. यज्ञा बेटा हो ना ग्रुप में? अनम्यूट करो बेटा. यस मैम. हाँ, रीड क्वेश्चन नंबर. What are the utensils Utensils. made? पढ़ो बेटा. Utensils. What are utensils made of? आज सुबह मैंने आपसे डिस्कस किया. Utensils किस चीज से बने रहते हैं, किससे बने रहते हैं? ओके मैम मेटल. तो यज्ञा, कैन you have to write down names of metals, Sanvi. Names of metals. Can you tell me answers, Sanvi? So that I can write. वही सारे डिस्कस किए, उनके नाम लिखना है, उन मेटल्स के, उन चीजों के. फॉर एग्जाम्पल, स्टील, like this. Now, Sani, can you answer my question? Yes. Yes, Sanvi, please. Steel. Copper. Copper, yes, correct. Copper. अभी आपकी चांस नहीं है बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए. सानवी का आंसर करने दीजिए. यस सानवी, नेक्स्ट. Wood. Wood. Wood, yes, correct. Next, brass. Can I write brass? Ma'am, brass. Ma'am, beetle. सबकी आवाज आ रही है मुझे, सानवी को छोड़ के. Ma'am, glass. सानवी, ग्लास, यस, करेक्ट. प्लास्टिक. क्या मैं प्लास्टिक बताइए कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? गौरव, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम, यस, करेक्ट. एल्यूमिनियम. Ma'am, iron. Anvi, can I write plastic? Iron, yes, correct. हमारा जो तवा होता है वो आयरन से बना. Yes, correct. Can I write plastic and clay? Ma'am, wooden. Ma'am, plastic. Ma'am, wooden. Plastic. Ma'am, wooden. वुडन इट इज. Ma'am, wooden. ये कौन है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? वुड लिखा हुआ है ना पहले से. और किसने क्ले? कैन आई राइट क्ले? हमारे जो प्लेट्स होते हैं वो क्ले से बनी हुई रहती है. बोल्स भी रहते हैं हमारे घर में जो क्ले से बने रहते हैं. सानवी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा. फाइबर. फाइबर.
Okay, now we will move to the next question. Name the following things that are eaten raw, that can be eaten raw. मतलब जो चीजें ऐसी है जिनको हम रॉ खा सकते, रॉ यानी बिना पकाए। मैम कच्चा। टमाटो। मैम वेजिटेबल्स। मैम वेजिटेबल्स। मैम वेजिटेबल। मैम कुकुम्बर। मैम फ्रूट। फ्रूट्स। मैम एप्पल। मैम फ्रूट। मैम लंच बॉक्स। नहीं लिख रही, जब तक सारे म्यूट नहीं होंगे मैं नहीं लिख रही हूँ। लखन अनम्यूट योरसेल्फ। पूर्ति और सानवी, पूर्ति और सानवी म्यूट करो बेटा। लखन अनम्यूट करो। यस मैम। Can you hear 2 examples or 4 examples that are eaten raw? All the vegetables. मैम फ्रूट। हाँ, yes, fruits, yes, correct. All the fruits. वेजिटेबल। सारी वेजिटेबल्स हम रॉ खा सकते हैं, पोटैटोज हम रॉ खा सकते हैं। सोचो फ्रूट। अब फिर से कौन बोल रहा है? अभी मैं देखती हूँ कौन बीच में आंसर कर रहा है बार बार। कविउद्दीन, keep quiet. Kaviyuddin, this is not your turn. I am asking. Ma'am, I have mute. Then who is answering in between? Ma'am, Kushagra. Kushagra, keep quiet, beta. किसको पूछा था वो तो म्यूट हो गया, जिसको पूछा था मैंने आंसर। अमान, आपसे पूछा था क्या? लखन लखन बताइए बेटा, क्या सारी वेजिटेबल्स हम रॉ खा सकते हैं? लखन, जैसे पोटैटोज, ब्रिंजल्स। हाँ, तो सारे वेजिटेबल्स के नेम्स मत बताओ, जो वेजिटेबल्स रॉ खा सकते हैं उन्हीं के नेम्स बताओ बेटा। कैन वी ईट टमेटोज रॉ? टमेटोज हम रॉ खा सकते हैं? यस। यस, सो कैन आई राइट टमेटोज? मैम लेट्यूस। फिर से कोई बीच में बोला। जिसकी टर्न है उसी को थोड़ा सा बोलने दो बेटा। यस, किसी ने लेट्यूस बोला। लेट्यूस इज आल्सो करेक्ट आंसर। लेट्यूस को भी हम रॉ खा सकते हैं। मैम कैरट। अनियंस आल्सो करेक्ट। मैम कुकुम्बर। मैम कैरट। मैम कुकुम्बर। मैम एप्पल। रेडिश। बेटा एप्पल। मैम कैरट। टमाटो। मैम कैरट। मैम कैरेट। Carrots. मैम Yes, कैरट। carrots. Now we will. मैम मैम कुकुम्बर। क्या मम्मी? मैम कैरट्स। मैम पीज। मैम पीज। Carrots. Carrots लिखा है मैंने पहले। अनिरुद्ध, carrots. Carrots. मैम पीज। मैम खीरा। मैम खीरा। बेटा हाँ, यस, नट्स आल्सो। मैम नट्स, ओके फाइन। अब बस हम आगे वाले क्वेश्चन में जाएंगे अभी। ओके, नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड। कुक्ड मीन्स बिना पका कर ही खा सकते हैं, रॉ नहीं खा सकते। इसको मैम दाल। मैम पोटैटो। पोटैटोज। मैम राइस। मैम ब्रिंजल्स। मैम दाल। मैम लेडी फिंगर। राइस। मैम राइस। मैम पोटैटो। मैम दाल। मैं सारी पल्सेस लेडी फिंगर। मैम लेडी फिंगर। डाले आगे। मैम कैबेज। मैम लेडी फिंगर। मैम कैबेज। कैबेज सैलेड में खा सकते
लेडी फिंगर मैम। अनिरुद्ध, कैबेज को भी खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं कैबेज। कुछ लोग इसको लेडी फिंगर को भी खाते हैं कच्चा। और करेक्ट, मैम करेला। मैम is also correct. मैम पापाया। Pay attention, all of you. Now mute yourself. Everyone please mute yourself. 1, 2, and 3. Mute yourselves, everyone. Now don't unmute and listen. अब मैं जो अनम्यूट करेगा उसको बाहर करना। गौरव, मैं अभी तुमको बाहर निकालती हूँ मीटिंग से। अभी क्या बोला मैंने? कोई अनम्यूट नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। Last question, listen to ma'am. Nobody will answer this question. You have to write down answer of this question in your notebook. I will send these questions on the WhatsApp group. Things that are eaten both raw as well as cooked. For example, we can take carrot. कैरेट को हम रॉ भी खा सकते हैं। ये वाला पोर्शन ध्यान में रखना। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। सॉरी, मेरा कर्सर क्यों नीचे। रॉ एज वेल एज कुक्ड। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कैरेट का। कैरेट हम रॉ भी खा सकते हैं और कैरेट की बहुत सारी चीजें भी बनती है। हलवा बनता है ना? कुछ लोग सब्जी में भी डालते हैं उसको। तो कैरेट बीच में अनम्यूट नहीं करना, कोई अनम्यूट नहीं करना, अनम्यूट नहीं करना कोई भी। ध्यान से सुनो, ये आपको लिखना है खुद से। मैं बस डिस्कस कर रही हूँ। आपको एक एग्जांपल मैंने कैरेट का दिया है। टमेटोज भी यूज in our vegetables, dal and any other food items. We can eat them raw also as well as cooked. ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद लिखेंगे अपनी कॉपी में। Understood everyone? And we will stop here. Time is over now. We will do Shanti Pach. Okay, beta? Join your hands. Close your eyes, all of you. Saira ma'am.